السلام علیکم دوستوں، انسانی زندگی کا یہ تقاضا ہے کہ ضرورت کے مطابق بارشیں ہوں، لیکن بدقسمتی سے یہاں کبھی حد سے زیادہ بارشیں ہو کر سیلاب بن جاتا ہے تو کبھی خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا ینظرون، یعنی کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کبھی سیلاب اور کبھی خشک سالی کے پیچھے ہمیں سائنسی وجوہات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ دراصل یہ ہمارے موسموں کو لگنے والی ایک بیماری ہے۔ جیسے انسان کو کبھی اسہال ہو جاتا ہے تو کبھی انسان کو قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہمارے موسموں کو کبھی ایل نینو کی بیماری لگ جاتی ہے تو کبھی لا نینا کی بیماری لگ جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شفیز ڈائری سے ایل نینو اور لا نینا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بننے والی ہے، ساتھ رہیے آخر تک شفیز ڈائری کے۔ اب آپ کو جو چیز سمجھانی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری زمین پر بعض اوقات اور بالخصوص انڈیا پاکستان میں یعنی بر صغیر میں بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بارشیں اتنی کم ہوتی ہیں کہ پھر پانی جو پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمیں آسانی سے نہیں ملتا۔ تو اس کی وجوہات ہم نے دیکھنی تھی۔ سب سے پہلے آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہے ساؤتھ امریکہ، یعنی یہ سارا علاقہ جو ہے یہ جنوبی امریکہ کا علاقہ ہے۔ پھر آپ کے بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ سمندر سٹارٹ ہوتا ہے، یہ پورا سمندر ہے، یہ سارا کا سارا سمندر ہے، یہ بہت ہی بڑا سمندر ہے جس کو پیسیفک اوشن کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ سمندر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے تو یہاں آپ کو یلو کلر کا یعنی یہ زرد کلر کا جو نظر آ رہا ہے یہ آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کے ساتھ ہی قریب یہاں پہ انڈیا اور پاکستان ہے۔ تھوڑا سا ٹھیڑا کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ انڈیا ہے اور پاکستان ہے۔ تو پیسیفک جو اوشن ہے، یہ جو سمندر ہے، یہ ایشیا کے ممالک یعنی انڈیا، پاکستان وغیرہ دیگر ممالک کو ساؤتھ امریکہ یعنی یہ جو جنوبی امریکہ سے ہے، ان دونوں کو پیسیفک اوشن ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ زمین ایسے گھومتی ہے، یہ ایسے آپ کی بائیں طرف سے دائیں طرف گھومتی ہے۔ جیسے یہ تیزی کے ساتھ اس طرف گھومتی ہے تو اس کے اوپر جو ہوائیں ہوتی ہیں، اس زمین کے اوپر جو فضا ہے، جو ہوائیں موجود ہوتی ہیں، وہ ہوائیں آپ کے بائیں طرف اڑتی ہیں۔ زمین بائیں سے دائیں طرف گھومتی ہے، جبکہ ہواؤں کا رخ زمین کے دائیں طرف آنے سے ہواؤں کا رخ آپ کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ یعنی ہوائیں جنوبی امریکہ والی سائڈ سے آسٹریلیا والی سائڈ پر اڑتی ہیں، اور جب یہ ہوائیں امریکہ سے آسٹریلیا کی طرف اڑتی ہیں تو یہ ہوائیں اپنے ساتھ پانی کو بھی اس طرف لے کے جاتی ہیں۔ یہ جو ہوائیں یہاں سے اس طرف چلتی ہیں، ان ہواؤں کو ٹریڈ وائنڈز کہتے ہیں، اور یہ جو ٹریڈ وائنڈز ہیں، سمندر کی سطح کے اوپر جو گرم پانی ہوتا ہے، اس گرم پانی کو یہ ہوائیں آپ کے دائیں طرف سے یعنی امریکہ والی سائڈ سے، ساؤتھ امریکہ برازیل والی سائڈ سے، یہ سمندر کے گرم پانی کو آسٹریلیا والی سائڈ پر جمع کر دیتی ہیں۔ جب یہ سارا گرم پانی آسٹریلیا والی سائڈ یا یہاں ایشیا والی سائڈ پر جمع ہوتا ہے تو یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جب پانی گرم ہوتا ہے تو پانی اوپر کی طرف بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے۔ جیسے یہ پانی یہاں اوپر کی طرف اڑتا ہے، یعنی یہاں زیادہ تر پانی گرم ہے، تو پانی گرمائش کی وجہ سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے۔ جیسے یہ پانی اوپر کی طرف اڑتا ہے تو یہاں ان پانی سے، ان بخارات سے بادل بنتے ہیں، اور یہی بادل پھر بارش کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں یعنی بر صغیر میں اور آسٹریلیا میں کافی تیز بارشیں ہوتی ہیں، اور انہی بارشوں کی وجہ سے یہاں فصلیں سیراب ہوتی ہیں، زمین کو، زراعت کو پانی ملتا ہے۔ اب
दूसरी तरफ क्या होता है, जहाँ से ये गर्म पानी आया है वो है साउथ अमेरिका। तो चूंकि गर्म पानी यहाँ से उस तरफ गया है तो यहाँ पर जो सारा पानी है ना वो ठंडा पानी रह गया। अब ठंडे पानी में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जो नीचे बिल्कुल तह में जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। जैसे वो ठंडा पानी ऊपर सतह पर उठता है तो वो अपने साथ जो ग़िज़ाई मवाद हैं वो नीचे तह से ऊपर की तरफ उठाते हैं। जैसे ये ग़िज़ाई मवाद ऊपर सतह पर आते हैं तो होता कुछ यूँ है कि वहाँ पर मछलियों के लिए खुराक मिल जाती है और इस समंदर में आसपास की जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो सारी मछलियाँ यहाँ पर जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग मछलियों का शिकार शुरू कर देते हैं और उनके आमदन का ये एक बेहतरीन ज़रिया बन जाता है यहाँ साउथ अमेरिका यानी जनूबी अमेरिका में। अब जनूबी अमेरिका से चूँकि गर्म पानी उस तरफ गया है तो यहाँ पे इस तरफ काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, यहाँ पे काफ़ी सर्दी होगी और दूसरा मसला यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे खुश्क साली पैदा होती है, यानी जिसको हम कहते हैं ड्राउट्स पैदा हो जाएंगे। यहाँ पे ड्राउट्स पैदा हो जाएंगे, लेकिन फ़ायदा इसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं जिसकी वजह से लोग मछलियों की मदद से पैसे कमाते हैं। अब ये नॉर्मल कंडीशन है, ये इसी तरह ज़मीन के ऊपर होता रहता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। अब एबनॉर्मल क्या होता है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो हवाएं यहाँ से उस तरफ चलती थीं उन हवाओं की रफ़्तार कम पड़ जाती है। जैसे उन हवाओं की रफ़्तार कम होती है तो यहाँ से जो पानी इस तरफ आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पर जो पानी आ रहा था वो पानी अब उस तरफ नहीं जाएगा, यानी गर्म पानी यहाँ से उस तरफ नहीं जाएगा, गर्म पानी इधर ही रहेगा। जब गर्म पानी यहाँ इस समंदर में रहता है या अमेरिका वाली साइड पर रहता है तो इस वजह से हाँ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल अभी मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील में साल 2024 में सैलाब आया था। हालांकि यहाँ पे खुश्क साली होती है लेकिन इस बार यहाँ पे सैलाब आया था। सैलाब इसीलिए आया था कि यहाँ से जो हवाएं उस तरफ चलती हैं उनका रुख या उनकी रफ्तार काफ़ी कम हो गई जिसकी वजह से गर्म पानी इधर ही रह गया और बारिशें यहाँ हो गई। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया है या जो इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे इस तरह होगा कि गर्म पानी नहीं आएगा, गर्म पानी उधर ही रह गया। तो यहाँ गर्म पानी नहीं आएगा, बुखारात नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे, बारिशें नहीं होंगी और जब बारिशें नहीं होंगी तो हमारा ज़राअत मुतासिर होगा और जैसे ज़राअत मुतासिर होगा तो इन ममालिक की इकानमी पर, इनकी मईशत पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। और ये जो मसला हुआ अभी, इसी अमल को एल नीनो कहते हैं, यानी जब हवाओं की रफ़्तार सुस्त पड़ जाती है और उस वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वगैरह में, पाकिस्तान इंडिया में बारिशें नहीं होती, बारिशें अमेरिका वाली साइड पर हो जाती हैं, तो इस अमल को एल नीनो कहते हैं और एल नीनो का काफ़ी बुरा असर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया और सब कॉन्टिनेंट पे। अब बात करते हैं ला नीना के हवाले से। तो ला नीना बिल्कुल इसका रिवर्स अमल है, यानी ला नीना में क्या हो जाता है कि जो हवाएं यहाँ से उस तरफ जा रही थी ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पर, वो हवाएं पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। जब वो पहले से ज़्यादा तेज़ होंगी तो बहुत ही बड़ी मिक़दार में गर्म पानी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पर चला जाएगा। जैसे गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पर, सब कॉन्टिनेंट पर, इंडिया पाकिस्तान पर जमा होगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो जाएंगी, यानी बारिशें हद से तजावुज़ कर जाएंगी। जैसे हद से ज़्यादा बारिशें होंगी तो यहाँ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों की वजह से यहाँ सैलाब आएगा और जैसे यहाँ पर सैलाब आएगा तो यहाँ वो ज़राअत को नुकसान पहुँचाता है और इस वजह से भी इन ममालिक की मईशत पर काफ़ी बुरे असरात पड़ते हैं। तो बात कुछ इस तरह है कि ला नीना एक ऐसा अमल है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा बारिशें होती हैं, जबकि एल नीनो में ऑस्ट्रेलिया और सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया पाकिस्तान में बारिशें नहीं होती, खुश्क साली पैदा हो जाती है, ड्राउट्स पैदा हो जाते हैं, पीने का पानी नहीं मिलता, ज़राअत को पानी नहीं मिलता और बाज़ औक़ात तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि यहाँ पर जंगलात को
आग लग जाती है। और आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात को 2020 में, शायद 2020 में बहुत ख़तरनाक आग लग गई थी और उसकी वजह भी यही एल नीनो था। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हवाओं की जो रफ्तार है ये कम क्यों होती है। जब हवाएं तेज़ चल रही हैं तो इनको तेज़ चलना ही चाहिए, इनकी रफ्तार कम क्यों हो जाती है। तो जब हवाएं इस तरफ से इस तरफ चलती हैं और उनकी रफ्तार कम हो जाती है तो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन, सारी ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर रोज़ बरोज़ इंसानों के आमाल की वजह से, इंसान जो काम कर रहे हैं इन कामों की वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। एक है क्लाइमेट चेंज, इंसानों के ही आमाल की वजह से हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये हवाएं एक तरफ तेज़ होती हैं, बाज़ औक़ात ये दूसरी तरफ तेज़ हो जाती हैं। एक और वजह भी यहाँ पर हो सकती है और वो ये है कि जब ज़मीन ऐसे घूमती है तो इस ज़मीन के घूमने से भी हवाओं की रफ्तार कभी कम पड़ जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी वजह यह है कि हवाएं इसलिए यहाँ से उस तरफ उड़ती थी कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ प्रेशर कम था, तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उड़ती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, यानी यहाँ के प्रेशर और वहाँ के प्रेशर में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क कम हो जाता है। और उस फ़र्क के कम होने की वजह से, यानी प्रेशर ग्रेडियंट कम होने की वजह से ये हवाएं फिर उस तरफ नहीं उड़ती, तो इसलिए गर्म पानी उधर नहीं जाता। जब गर्म पानी नहीं जाता तो यहाँ बारिशें नहीं होती हैं और यहाँ पे ज़राअत को फिर भी नुकसान होता है। तो ये जो एल नीनो का जो अमल है ये कम से कम 2 साल के बाद आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के बाद, यानी 2 साल और 7 साल के दरमियान एक बार ये अमल ज़रूर होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद थी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप किसी और चैनल का इंतखाब कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वो देखिए, ताकि आपको इस टॉपिक की सही तरह से समझ आ सके। शफीज़ डायरी से फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।